So, a very good afternoon to everyone. आइए चर्चा करते हैं कि आनंद कहाँ छिपा हुआ है. वेयर इज आनंद, वेयर इट लाइज, वेयर इट लिव्स, एंड वेयर एक्चुअली इट इज हाइडिंग, and why we are only seeing sorrows and sorrows, and why we are always tired of these infinite negative thoughts and negativities of life, and why we are 24/7 unstable, and why we are always confused and always thinking. Why, what is Anand, where it is, and how to attain it? That is what is the point is. It's a matter of common sense. If Supreme Lord has created this earth, even suppose you create something, you create it at its best. I am telling you, अगर आप कुछ बनाते हो तो उसे सबसे बढ़िया बनाने का प्रयास करते हो. So if the Supreme Lord has created this earth, it has to be the best, it has to be good. I am telling you, there must be something which is hidden over here, and we are unable to understand what actually is happening here. It is due to lack of understanding of this word that we feel misery. This is one thing, and there are certain other things. Okay, इसको समझने के लिए if you have just basic common sense, you can understand. If you understand and see, and you introspect this word and you analyze this word and what actually is happening here. People are coming, going, and things are being destroyed and created, destruction, construction, every time, life, birth, death. Simultaneously, so many things are happening. You can easily say that it is only a game. It's nothing more than a puzzle, This is what I called as puzzle of life. ये एक पहेली है जिसे तुम्हें solve करना है. And that is as simple as that. And if you're able to solve this puzzle, then you are going to get Anand. The puzzle is, I am going to put you in misery, and how to find the, there is a point where there is misery and there is a point called as Anand. Can you reach from point A to B? That is up to you. And this is all the game is of this nature, of this prakriti, of this mind, that can you extract happiness in misery? Can you see what actually is happening? This is what is the point is. So where Anand is hiding, what is actually happening? Some common sense can reveal easily to you that if God has created it for Anand, then naturally it is going to give us Anand. But we are not feeling Anand. Instead of Anand, we are but feeling is sorrow, misery. 24/7 एक तृष्णा, एक प्रताड़ना, एक वासनाओं की आग हमें झुलसा रही है, you can say. Okay, so we are being constantly burning in the fire of thoughts, and we don't have any happiness or any joy over here. So what actually is going on here, and how to deal with it, and how to find Anand? This is what is the basic challenge before humanity and total humans. The 6.2 billion humans, they have this challenge only, how to find happiness in this life. And where is the Anand? जब तुम एक चीज़ बनाते हो तो तुम उसे अच्छा बनाते हो, तुम सोचते हो तुम उसमें खुश रहो, तुम चाहोगे इट शुड बी द बेस्ट, इट शुड बी द गुड. ऐसा नहीं हो सकता. अगर तुम्हारे बच्चे हैं तो तुम उनके लिए ख़राब सोचो और ख़राब करने की कोशिश करो. यू वांट द बेस्ट फॉर योर चिल्ड्रंस. अगर भगवान के हम बच्चे हैं तो उन्होंने हमारे लिए बेस्ट ही बनाया होगा, लेकिन हमें यहाँ बेस्ट तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा. चारों ओर हाहाकार, लड़ाई झगड़ा. व्हाट इज़ गोइंग ऑन हेयर? तो क्या बात है? हाउ इट इज़ टू बी जस्टिफाइड? व्हाट इज़ द पॉइंट इज़? हाउ वी आर गोइंग टू जस्टिफाई what you have created, Supreme Lord? I am not getting it. I am unable to understand what actually you have created. It is as simple as that. So this is 100% sure that there is something hiding here, and you are unable to see what is actually is hiding. Okay. Now ये तय है कि यहाँ पे अच्छा बनाया ही गया है, और ये भी तय है कि हम उसे नहीं समझ पा रहे हैं. तो आनंद है कहीं पर. तो बुद्ध का एक शिष्य था आनंद, ठीक है, इसीलिए शायद बुद्ध के साथ आनंद रहता था. ये भी एक कहने की बात हो सकती है, क्योंकि जहाँ पर बुद्धत्व का उत्पन्न होता है वहीं पर आनंद हो सकता है. मतलब अगर तुम अपने माइंड को रेस करो अप टू अ सर्टेन लेवल, देन यू कैन फाइंड आनंद इन योर सेल्फ. द बेसिक फंडामेंटल थिंग इज़ द आनंद इज़ इन यू ओनली. इट इज़ नॉट हाइडिंग एनीवेयर, इट इज़ नॉट एल्सवेयर, इट इज़ इन यू. It is imbibed inside you. I am 100% sure, and I can understand it, but you will not understand it so easily. It is not easy to understand. That is the point is. Okay, So Anand is inside you. That is the very core thing.
then how to find Ananda? If you are being awakened by the blessings of God, I am telling you, no one can awake himself or herself, है ना। आप खुद को अवेकन नहीं कर सकते हो किसी भी कीमत पर, जब तक कोई कृपा ना बरसे या गुरु ना हो आपके पास। अगर आपको थोड़ी सी भी अवेकनिंग दे दी गई और आपको अपने अंदर के खजाने का पता चल गया, द पैराबल ऑफ द हिडन ट्रेजर एंड द पर्ल, और आपने मोती और खजाने को देख लिया एक बार फील्ड में, जो जीसस कहते हैं, तो उसके बाद ही तुम्हें आनंद की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पर हमें जाना होगा अष्टावक्र के पास इसको समझने के लिए। अष्टावक्र के 15वें अध्याय का 14वां श्लोक पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि कोई ये है पेन, ये प्लास्टिक का बना है, और अगर मैं तुम्हें दिखाता हूँ तो तुम पेन कहते हो, क्योंकि तुम देख नहीं सकते कि ये प्लास्टिक है। तुम्हें पहली बार में प्लास्टिक कहना चाहिए, लेकिन तुम इसे पेन कहोगे क्योंकि तुम्हारी कंडीशनिंग ऐसी की गई है। इसी तरीके से अष्टावक्र कहता है क्या अंगूठी, बाजूबंद जो बाजू में पहनते हैं, और नुपुर जो पैरों में पहनते हैं, घुंघरू जिन्हें कहा जाता है, क्या वो सोने के अगर बने हैं तो क्या वो सोने से पृथक हैं? समझने की प्रयास करना, क्या सोने की अंगूठी सोने से अलग हो सकती है? इफ़ अ रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड, कैन इट बी सेपरेटेड बाय गोल्ड? नो, इट इज़ मेड ऑफ गोल्ड, देन इट इज़ नॉट अ रिंग, इट इज़ एक्चुअली गोल्ड। दैट इज़ व्हाट इज़ द पॉइंट इज़, अगर सोने की अंगूठी है तो वो सोने की बनी हुई है, तो तुम्हें सोना ही दिखना चाहिए। इसी तरीके से जब तुम किसी को देखते हो तो उसमें तुम ही हो, ये अष्टावक्र कहता है, और वो बिल्कुल सही कहता है, क्योंकि आनंद का और ज्ञान का पहला लक्षण ही यही है कि तुम जब किसी को देखोगे तो तुम खुद को देखो। और यही सारा खेल और सारी पजल यही है यहाँ संसार की। जैसे कि इसमें तुम्हें अपने आप को देखना है, एक जिसको तू देखता है उसमें तू ही प्रतिबिंबित है, इसी को एक्सपीरियंस करना है। और यही ज्ञान का कोर, आनंद का कोर सार ही यही है, सबसे मूल ज्ञान यही है, और यही आनंद दे सकता है। और इसके अलावा कुछ भी आनंद ही नहीं दे सकता, सब दुख भागी है। जब तुम स्वयं को सब में देखना शुरू कर दो तो तुम आनंद में रह सकते हो, क्योंकि तुम अपने में रहना शुरू कर देते हो। लेकिन इसके लिए थोड़ी अंदर की सफाई करनी पड़ेगी। जब अंदर की सफाई हो जाएगी तो बाहर चमक आ जाएगी आंखों में, और सामने तुम्हें खुद तुम दिखाई दोगे। बड़े कमाल की बात है ये। अद्वैत कह सकते हो कि मैं एक अद्वैत में मुझे मिली, समझ रहे हो? तो अद्वैत की अवस्था की प्राप्ति जब मैं स्वयं को देखता हूँ तो सब कुछ मैं ही होता हूँ। मैं जिसमें तू देखता है उसमें तू ही एक प्रतिबिंब है। साइंस में एक फिनोमिना है जिसे रिफ्लेक्शन कहा जाता है, लाइट का रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन नहीं। रिफ्लेक्शन को हिंदी में परावर्तन कहा जाता है। तो जो तुम सोचते हो वो विचार तुम्हारे सामने खड़े हो जाते हैं यहाँ पर, समझ रहे हो? जो भी तुम कुछ सोचते हो, अगर तुम आनंद का सोचते हो तो वो तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा आकर के। लेकिन सवाल ये है, जो समस्याएं तुम देख रहे हो तुम्हारे जीवन में, ये तुमने खुद ही बनाई हैं। लेकिन सवाल ये है कि तुम उसे देखोगे कैसे? बस यही तो मैं तुमसे कह रहा हूँ, अपनी आंखें खोलो और इसको ध्यान से देखो और सुनना सीखो। जब तुम अपने को ही बोलते हुए देखोगे और अपने को ही सुनते हुए सुनोगे, तब तुम शांति और आनंद को प्राप्त होगे और स्वयं में आनंद लोगे। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण हमेशा राधा में ही रमण करते थे, समझ रहे हो? वैसे ही तुम स्वयं में रमण करने लगोगे। आत्मरमण जिसे कहा जाता है, ठीक है? ये क्या है? एक किस्म का आत्मरमण है, स्वयं में ही रमण होना, और स्वयं में रमते रमते स्वयं ही हो जाना। सब कुछ स्वयं हो गया, मैं टीवी, फ्रिज, आदमी सब मैं ही बन गया। ऐसा ही है, और यही ज्ञान कहलाता है, समझ रहे हो? और सिर्फ यही तुम्हें आनंद दे सकता है, ये समझ लेना। अब इसमें एक बहस हो सकती है कि ड्यूअलिटी वर्सेस नॉन ड्यूअलिटी, आनंद किस में है? तो वो कहेंगे भाई नॉन ड्यूअलिटी, वर्ल्ड ड्यूअल है कि नॉन ड्यूअल है। ये इसमें बहस हज़ारों सालों से चल रही है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये ड्यूअल है, कोई कहते हैं नॉन ड्यूअल है। शंकराचार्य ने कहा दिस वर्ड इज़ नॉन ड्यूअल। और शंकराचार्य के बाद भी कई लोग आए, अष्टावक्र भी कहते हैं कि इट्स नॉन ड्यूअल, लेकिन वल्लभाचार्य कहते हैं ये ड्यूअल है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, ये वर्ल्ड इज़ नाइदर ड्यूअल नॉर नॉन ड्यूअल, क्योंकि आनंद के लिए देखो, अगर तुमने नॉन ड्यूअल वर्ल्ड कर दिया, सब जगह मैं ही हूँ, सब जगह मैं ही दिखता हूँ, तो तुम्हें आनंद ही नहीं मिलेगा। ये भी तो सवाल है। तो उसने क्या किया? उसने उसके अंदर, अपने अंदर ही विभाजन कर दिया माइंड का,
और उसने कहा कि माइंड को मैं डिवाइड कर देता हूँ और मैं नॉन ड्यूअलिटी क्रिएट करता हूँ, क्योंकि मैं अपने में आनंद नहीं ले पा रहा हूँ, केवल मैं रहूँगा तो। इसलिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें एक ऐसी अवस्था की खोज करनी पड़ेगी आनंद के लिए जो ड्यूअलिटी और नॉन ड्यूअलिटी के ठीक बीच में हो, ताकि तुम ड्यूअल भी रहो और नॉन ड्यूअल भी रहो। यही जैसे कि लाइट का पार्टिकल होता है, उसका ड्यूअल बिहेवियर है, ठीक है, वैसे ही तुम हो, तुम भी तो लाइट ही हो, लाइट के अलावा क्या हो। अगर तुम ये जान गए कि तुम लाइट हो और तुम देख और सुन सकते हो, क्योंकि देखने वाली लाइट तुम ही सिर्फ बचोगे, तो तुम ड्यूअल और नॉन ड्यूअल के बीच में एक पॉइंट से अपने आप को आनंदित हो सकते हो, अपने आप को उस पॉइंट पे ला करके आनंद की प्राप्ति कर सकते हो। और वो आनंद तुम्हारे भीतर गुरु की कृपा से ही सृजित हो सकता है, वो बनता है, मैं तुमसे कहता हूँ, उसका निर्माण किया जाता है, उसमें सालों लग जाते हैं। वो आनंद ऐसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ अपने कर्मों को ठीक से करो और ठीक से देखना और सुनना सीखो, ताकि तुम इस ड्यूअल और नॉन ड्यूअल के भेद के बीच में पहुँच के आनंद पे बैठो। और मैं क्या चाहता हूँ कि तुम जो अष्टावक्र कहता है कि इस संसार की जो पहेली है उसे सॉल्व कर लोगे, कि वो पहेली यही है कि जिसे भी मैं देखता हूँ वो मैं ही होता हूँ, और यही ज्ञान है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है तुम समझ गए होगे कि ज्ञान की प्राप्ति क्या है और आनंद कहाँ है। चलो इस बारे में आज इतना ही, फिर बात करेंगे। धन्यवाद।